Okay, dear students. Now let's talk about one of the most important concept of this chapter, that is equivalent concept. ठीक है, वैसे तो you have studied in mole concept as well कि equivalents क्या होते हैं, normality क्या होती है, number of equivalents, mass equivalent, equivalent weight and all those things. But वहाँ सिर्फ एक basic introduction लिया गया था. In that particular chapter, you have just discussed about normality, molarity, and the relation between molarity and normality. But किसी भी redox reaction में equivalent concept कैसे लगाएं, that we haven't discussed over there, है ना? At that particular time, we have discussed about n factor in case of acid, in case of base, in case of salt. ठीक है? Whereas now we'll discuss n factor, we'll discuss equivalent concept in case of a redox reaction. It is most important, one of the most important topic of inorganic. ठीक है? इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना होते हैं, इक्विवेलेंट कंसेप्ट या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. और सर इतना सारा थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा. ठीक है. Whenever two substances react in such a fashion, in such a way that their valency factor and the ratio x is to y, they will always react with each other in the molar ratio y is to x. सर कुछ भी दे रखा है तो सर मुद्दे की बात करो. ठीक है. This according to the law of equivalence, whenever, है ना, ये इंपॉर्टेंट है. According to the law of equivalence, whenever the two substances react, whenever any two substances reacts, the equivalents of one will be equal to the equivalents of the other and is also equal to the equivalents of each of the products. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साहब. इसका रीजन ऊपर लिखा है कि मोलर रेशियो सपोज ये है तो इक्विवेलेंस ये है, तो सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एवरीथिंग की वैल्यू सेम आएगी. ठीक है. तो दे आर सेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि साहब whenever any reacted for in any chemical reaction, है ना, बैलेंसिंग करना इज नॉट कंपल्शन फॉर इक्विवेलेंट कंसेप्ट, है ना. जैसे पीओएसी एंड इक्विवेलेंस में बैलेंसिंग इज नॉट वेरी एसेंशियल. तो साहब क्या होता है कि इक्विवेलेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट, ऑल द रिएक्टेंट, इक्विवेलेंस ऑफ एवरीथिंग आर इक्वल, इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल, इक्विवेलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल. तो सर सब कुछ इक्वल इक्वल हो गया तो नो 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 भैया थोड़ी कर रहा. ठीक है. इक्विवेलेंट्स इक्वली ही होते हैं. मास इक्वल होते हैं क्या? नहीं. मास रिएक्टेंट 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 प्रोडक्ट किसी इक्वल नहीं होते, वेट नहीं होते, मोल्स इक्वल नहीं होते, बट द नेट इक्विवेलेंट्स आर ऑलवेज बीइंग इक्वल. ठीक है. In general, the equivalents of one of will be equal to the equivalents of other reactant, and it is also equal to the equivalent of the products. That is, if A mole of A plus B mole of B plus C mole of C react to DEEFF, then the equivalents of A, B, C, D, and F are all equal to each other. These are all equal to each other. The equivalents of A, B, C, D, E, and F are all equal to each other, irrespective of the molar ratio in which they are reacting. किसी भी molar ratio, I'm saying ना, इसका कोई काम नहीं है. For equivalent concept, number of moles doesn't matter. Mole concept लगाना हो, उससे चीजें करना हो तो the number of moles will matter, but equivalent concept में balancing does not matter, है ना. For POAC, principle of atom conservation, for equivalent concept, balancing does not matter, and most of the questions you can do it by those concept without balancing. क्योंकि एक्चुअली जे एडवांस में अगर आप क्वेश्चन करने जाओगे और इफ यू आर स्टक इन बैलेंसिंग अ पर्टिकुलर रिएक्शन, देन साहब टाइम हो गया, है ना. फिर दैट वुड नॉट मैटर. सो इक्विवेलेंस ऑफ एवरीथिंग विल बी इक्वल, है ना. चलिए, thus the advantage with the equivalent concept is that we don't have to balance a particular chemical reaction. सर इक्विवेलेंट तो आपने बहुत कर लिया कि के इक्विवेलेंट 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 सबके इक्वल है, पर सर ये होते क्या है यार. ठीक है. तो सपोज 3 फॉर्मूले हैं. प्रोबेबली मोल कंसेप्ट में आपने थोड़े से याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के 3 फॉर्मूले हैं, है ना. एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू विल डिसाइड कि विच फॉर्मूला टू यूज वेयर. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू 3 फॉर्मूले. नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, पहला फॉर्मूला. The normality into volume is equal to number of equivalents. जैसे कि normality is defined as number of equivalents divided by volume, वैसे number of equivalent equal to normality into volume. पहली चीज. दूसरी चीज, normality को आप लिख सकते हो molarity into n factor. Normality को you could write molarity into n factor. n factor मतलब valency factor, है ना, और into volume जो आपका पहले से था, into volume. And apart from this, आप in terms of moles कैसे लिख सकते हो? Molarity is defined as number of moles per unit volume.
ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को वॉल्यूम से कैंसिल करूंगा तो इट विल कम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। दिस आर द 3 गोल्डन रूल्स। साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 इक्वेशन है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन क्या रिक्वायर्ड है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी यूज एनी ऑफ दोज पर्टिकुलर इक्वेशन, इनमें से जो लगे वी कुड यूज दिस थिंग्स। ठीक है, चलिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, एंड नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, है ना। दूसरी चीज, फॉर एनी पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट विल रिड्यूस। तो एट पर्टिकुलर फॉर एनी रेडॉक्स रिएक्शन एट इक्विवेलेंस पॉइंट the equivalent of oxidizing agent is equal to equivalent of reducing agent, equivalent of oxidant is equal to equivalent of reductant। सर आप बार बार equivalent खेल रहे हो, कुछ कराओ। Okay, let us take some standard examples and rest example we will take in numerical section। ठीक, but कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लें, है ना। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। आंसर मत देखिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयंस ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4- इन एन एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहली प्री रिक्विजिट यू मस्ट नो कि मैंगनीज +7, वैसे मैंने रेडॉक्स में सिखाया थोड़ा सा, बट नाउ लेट्स डिस्कस, मतलब व्हेन वी हैव डिस्कस दैट, नाउ लेट्स डिस्कस कि साहब Mn+7 जो है, Mn+7 मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो डेफिनेटली मैंगनीज विल decrease its oxidation state। तो Mn+7 in acidic medium goes to Mn+2, whereas in neutral or mild basic medium, mildly basic medium, Mn goes to MnO2, that is Mn goes to Mn+4, whereas in strongly basic medium, that is in the medium of KOH वगैरह, तो Mn goes in Mn+6। तो Mn+7 से +2 +4 +6 आता है। एसिडिक मीडियम में n फैक्टर अगर बात करें तो 7 में से 2 गए तो 5, यहाँ पर n फैक्टर की बात करें तो 7 में से 4 गए तो 3, और यहाँ पे n फैक्टर की बात करें तो 7 में से 6 गए तो 1। ठीक है, ओके। तो एन फैक्टर की बात कर ली कि साहब एसिडिक मीडियम में Mn फ्रॉम KMnO4 Mn+7 से Mn+2 में जाता है, इन न्यूट्रल +4, न्यूट्रल और माइल्डली अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम +4, और स्ट्रांगली बेसिक में +6। नाउ इट इज आस्क्ड दैट नंबर ऑफ मोल्स, दे आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स वाला फॉर्मूला लगाना है। मोलैरिटी पूछे तो मोलैरिटी वाला, वो नॉर्मेलिटी पूछे तो नॉर्मेलिटी वाला, है ना। ऑफ ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट मतलब H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सलेट आयन मतलब C2O4-2, है ना। ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ MnO4 मैंगनेट, सॉरी, क्या फर्क पड़ता है फिलहाल, है ना, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है दोस्तों। देखिए, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7, एंड एज आई टोल्ड यू कि इन एसिडिक स्टेट मैंगनीज गोज फ्रॉम +7 टू +2। नाउ कार्बन की बात करें तो 2x - 8 इज इक्वल टू -2, 2x - 4 into 2, 4 into -2, सॉरी 2x + 4 into -2, दैट इज -8 इज इक्वल टू -2, 8 में से 2 गए 6, 6 बाई 2 3, कार्बन इज इन +3, और कार्बन को अगर मैंगनीज ऑक्सीडाइज करेगा तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +4, तो कार्बन +4 में जाएगा। बाकी के वे अपना कुछ भी करेंगे, दे वुड डू एनीथिंग, है ना, जो भी हो बचा, जो भी, ठीक है। वी डोंट नीड टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, चलिए, ठीक है। तो यहां पर बात करें तो इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सलेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मैंगनेट पर मैंगनेट, ठीक है। तो सर इक्विवेलेंट्स के 3 फॉर्मूले बताया आपने, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, ओहो मोल्स इनटू एन फैक्टर, बट सिचुएशन है यहाँ मोल्स है और यहाँ भी मोल्स है। ऐसा भी हो सकता था कि एट पर्टिकुलर एक में मोल्स है, एक में नॉर्मेलिटी है, तो आप क्रिस क्रॉस कर सकते हो, बिकॉज दोनों सेम ही चीज है। यहाँ मोल्स वाला लगा लो, नॉर्मेलिटी वाला लगा दो, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ भी मोल वहाँ भी मोल, ठीक है। तो अपन करें मोल्स ऑफ ऑक्सलेट इनटू एन फैक्टर ऑफ ऑक्सलेट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ परमैंगनेट इनटू एन फैक्टर ऑफ परमैंगनेट, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन लेट इट बी x, क्योंकि वो तो पूछा हुआ है, मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन लेट इट बी x, क्योंकि वो पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयंस आर रिक्वायर्ड। नाउ एन फैक्टर ऑफ ऑक्सलेट +3 से +4 गया है कार्बन, और ओनली कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, है ना, और कोई होता है तो उसे भी
we would have considered, but in this particular equation only carbon is getting oxidized. तो कार्बन +3 से +4 में गया, तो n फैक्टर ऑफ ईच कार्बन इज इक्वल टू 1. +3 से +4 में गया, एक कार्बन का n फैक्टर 1 है, और यू नो कि ऑक्सीलेट में 2 कार्बन हैं, तो n फैक्टर इज इक्वल टू फॉर ऑक्सीलेट 1 into 2. as I told you, कितने इंडिविजुअल एटम्स उससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर ओनली फॉर वन एटम, और जितने एटम होंगे उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना रे. तो 2 कार्बन है, तो n फैक्टर चेंज है 1 का, और कार्बन है 2, तो n फैक्टर इज इक्वल टू 2. देन नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल ऑफ KMnO4, मतलब 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस इनटू n फैक्टर इन एसिडिक मीडियम. इन एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम है +7 से +++2 गया है, चेंज है 5 का, चेंज है 5 का चेंज, और मैंगनीज भी एक ही है. ठीक है, द चेंज इज ऑफ 5 एंड देयर इज 1 मैंगनीज, तो 5 आ गया यहाँ पर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट कितने आ गए, 5/2. ठीक है, देखो जादुई चीज है. अरे अपन ने तो डायलॉग बाजी करी, कंसेप्ट बाजी करी, ये सब चीजें करी, बट एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज ओनली ऑफ 1 मिनट. अगर आप इस क्वेश्चन को बैलेंसिंग करने जाते तो दैट वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. ये तो फिर भी सिंपल था बैलेंसिंग में, है ना, बट प्लीज यूज दीज कंसेप्ट्स इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग, है ना. कई बार इवन जी एडवांस में भी इस टाइप का क्वेश्चन अभी आया था, 2020 में भी आया था. ठीक है, बैलेंसिंग कर रहे थे तो 3-4 मिनट लग रहे थे, आप डायरेक्ट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज कर रहे थे तो आधा मिनट लग रहा था. तो इट्स अंडरस्टैंडेबल, टाइम बचाओ. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड आर 5/2. तो आपको देखना है चेंज इन n फैक्टर, चेंज इन n फैक्टर देखना है, नंबर ऑफ मोल्स देखना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इंडिविजुअल कितना एटम्स है उससे. 3 फॉर्मूले, नॉर्मलिटी वॉल्यूम, मोलारिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम, एंड मोल्स इनटू n फैक्टर, स्वाद अनुसार, सॉरी सिचुएशन अनुसार यूज करना है आपको. ठीक है, चलिए दोस्तों, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. ओहो हो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ दैट. बट फिर से वही चीज आ गई, फिर से एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन आ गया. सर बार बार आप एसिडिक मीडियम ही क्यों ले रहे हो? अरे तो आप बेसिक ले लो क्वेश्चन, देयर वुड बी डिफरेंसेस. बट यहाँ पर इक्वेशन इज गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 required to oxidize 1 mole of Cu2S to what, to nothing. है ना, इन एसिडिक मीडियम. तो एसिडिक मीडियम में है तो Mn+7 would be reduced to Mn+2. ये दोनों मैंने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन लिए, बट देयर इज अ लार्ज डिफरेंस, एक बहुत टेक्निकल डिफरेंस आएगा इसमें. बाकी इक्वेशन में n फैक्टर का चेंज, मैंगनीज इज एसिडिक मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ता. चलिए, और यहाँ पर भी मोल्स वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस वाज आल्सो मोल्स वाला, नॉट नॉर्मेलिटी नॉट मोलारिटी, उसके क्वेश्चंस भी विल डू. ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ Cu2S. है ना, अब Cu2S में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 एंड सल्फर की -2, तो +1 into 2 +2 और -2, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है. पोटेशियम डज नॉट चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज +7 में ही रहेगा. अब देखिए, मैंगनीज वुड बी रिड्यूस टू +2, मैंगनीज वुड बी रिड्यूस टू +2. अब कॉपर +1 और सल्फर में से कौन ऑक्सीडाइज होगा, है ना. एज वी आर इन क्लास 11th, वी आर इन स्टार्टिंग ऑफ क्लास 11th, तो आपको इक्वेशन मैंने लिख के देख ली है. बट आफ्टर क्लास 12th, whenever you will study various reactions of D and F block, you will study various reaction, तो आपको इक्वेशन लिखी हुई नहीं मिलेगी. ठीक है, बट ओके, 11th के नन्हे मुन्ने बच्चों आओ इधर. तो +7 +2. ओके, नाउ इनिशियली टॉपिक होगा आपको इसी क्लास में, कॉपर +1 is getting oxidized to copper +2, and sulfur -2 is getting oxidized to, देखो SO2 यहाँ पे, SO2 मतलब 2 into -2 मतलब +4, सल्फर +4 में है और ऑक्सीजन -2 में. ऑक्सीजन तो यहाँ भी -2 में, तो देयर इज नो चेंज ऑफ ऑक्सीजन, है ना. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कि इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज कर रहा है KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है. नाउ it is very important, in previous question only one substance was getting oxidized, one was getting reduced, but in this particular question Mn ही reduce हो रहा है, but oxidation, there is oxidation of copper as well as there is oxidation of sulfur as well. ठीक है, तो आपको copper and sulfur दोनों में आपको you have to do it. ठीक है, जैसे यहाँ तो आप सीधे सीधे लग सकते हो, moles of KMnO4 into n factor of KMnO4 is equal to reducing agent, moles of reducing agent, sorry रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है तो खुद रिड्यूस हो रहा है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनटू n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू
मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इनटू एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। मोल सो इट इज गिवन कि 1 मोल है ना। बट एक चीज याद रखिए, तो इंडिविजुअली आपको कॉपर के लिए भी करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इनटू एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर आपको कॉपर के लिए करना पड़ेगा, तो कॉपर का पहली बात तो 1, तो खैर वो सब चीज़ें अलग है, इनटू एन फैक्टर, पहले मोल नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे ना, सावधान रहिएगा, बताऊंगा मैं आपको। एन फैक्टर कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2 में गया, कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2 में गया, देयर इज चेंज ऑफ 1, देयर इज चेंज ऑफ 1। कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2 में गया, देयर इज चेंज ऑफ 1 एन फैक्टर एंड देयर आर 2 कॉपर्स। एलिमेंटल लेवल पे करना होता है ना। एलिमेंटल लेवल पे देयर आर 2 कॉपर्स, तो एक कॉपर का जो चेंज है +1 से +2 एक का है, एंड देयर आर 2 कॉपर्स, तो 1 × 2 इज 2। सर खत्म हो गया क्या? अरे भैया मेरे कहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सल्फर। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -2 है एंड यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो चेंज कितना है? +4 से -2 का चेंज है, तो क्या 2 का चेंज है? अरे भैया मेरे +2 से +4 का चेंज नहीं है कि 2 का चेंज है, -2 से +4 का चेंज है, तो 4 × 2 6 का चेंज है, इट इज चेंज ऑफ 6। इन फैक्टर द चेंज इन सल्फर इज ऑफ 6 एंड देयर आर ओनली 1 सल्फर। सल्फर देखिए एक ही है यहाँ पर और सल्फर यहाँ पर भी एक ही है, तो देयर इज ओनली 1 सल्फर, तो यू हैव टू कंसीडर बोथ ऑफ दीज केसेस। चलिए यहाँ पर बात करें मोल्स ऑफ KMnO4, इट इज रिक्वायर्ड, ये पूछा गया है, और n फैक्टर ऑफ KMnO4 +7 से एसिडिक मीडियम में +2 पर गया है, देयर इज चेंज ऑफ 5, देयर इज चेंज ऑफ 5 एंड देयर आर 1 मैंगनीज ओनली, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है दोस्तों? 2 + 6 8 और ये 5, तो x इज इक्वल टू 8/5, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज प्रोबेबल JEE मेंस लाइक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ओके, आगे की बात विल स्टडी।